ادھر اس کی چپل بولے گی ٹک 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 ٹک, ادھر نوجوانوں کے دل بولیں گے دھک 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 دھک. اونچی ہل کی چپل جو ہوتی ہے نا, اونچی ہل کی پہن لیتی ہیں, وہ نیچے گٹکا لگا رہتا ہے, تھوڑا سا ناٹی قد کی ہو تو لمبی لگتی ہے وہ, اور وہ پہن کے چلتی ہیں تو وہ سڑک پر وہ چپل آواز کرتی ہے, ٹک 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 آواز کرے گی. عورت کے لیے اونچی ہل کی وہ چپل جو سڑک پر چلتے وقت ٹک ٹک کی آواز کرے, وہ چپل بھی پہن کر چلنا منع ہے عورت کے لیے. ظاہر ہے وہ چپل ٹک 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 کرے گی, ادھر اس کی چپل بولے گی ٹک 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 ٹک, ادھر نوجوانوں کے دل بولیں گے دھک 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 دھک. منع ہے. کوئی بھی خوشبو پرفیوم نہیں لگا سکتی, گھر میں جو چاہے لگائے, لیکن گھر کے باہر کوئی پرفیوم نہیں, کوئی عطر نہیں, یہاں تک کہ خوشبودار کوئی چیز نہیں. اگر کریم میں خوشبو ہے تو وہ بھی نہیں, پاؤڈر میں خوشبو ہے تو وہ بھی نہیں, اگر کوئی ایسا تیل یوز کرتی ہے جس میں خوشبو ہے تو وہ بھی نہیں. فرمایا کوئی عورت, اور سن لو, کوئی عورت خوشبو لگا کر, عطر لگا کر, میک اپ کر کے گھر سے باہر نکلتی ہے, جب تک وہ گھر نہ آ جائے زانیہ لکھی جاتی ہے. سن رہے ہیں؟ جو عورت میک اپ کر کے, جو عورت خوشبو لگا کر, جو عورت کریم پاؤڈر میک اپ سور کر جب گھر سے باہر نکلتی ہے تو اس پر اللہ کی, فرشتوں کی لعنت برستی رہتی ہے, اور جب تک وہ گھر کے باہر رہتی ہے زانیہ اور بدچلن لکھی جاتی ہے. اب وہ بازار سے یا میک اپ کر کے گئی اور باہر سے گھوم کر جب وہ اپنے گھر پہ آ جائے تو اس وقت تک وہ نماز نہیں پڑھ سکتی ہے. نوٹ کریے, اس وقت تک وہ نماز نہیں پڑھ سکتی ہے جب تک کہ وہ ایسے غسل نہ کر لے, ایسے نہا نہ لے جیسے شوہر سے بیوی ملنے کے بعد, ہم بستر ہونے کے بعد جب بیوی غسل کرتی ہے اور نہا کر پاک ہوتی ہے, جب تک یہ عورت اس طریقے پر غسل نہ کر لے تب تک وہ نہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ روزہ رکھ سکتی ہے. اب بتائیے ہم اسلام کے اس مشن میں کتنے گھل چکے ہیں. بتائیے اسلام کا, ہمارا اور ہماری بیٹیوں کا اسلام کیسا ہے؟ کیا پانی اور رنگ کی طرح ہے؟ کیا ہماری لڑکیاں, ہماری بیویاں کیا اس اسلام کے مزاج میں پوری کی پوری داخل ہیں؟ کون سی لڑکی ہے جو لپسٹک لگا کے نہیں آئی ہے؟ ذرا دیکھو تو. اب آپ کہو گے مولانا کہہ رہے دیکھو تو, جملے بہت جلدی پکڑتے ہو. اب دیکھنے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ نقاب ہٹا کے دیکھیں گے, اور دیکھو کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ دیکھو نہ دیکھو, لیکن جب نقاب ہی نہیں ہے تو اپنے آپ دکھ جائے گا. آج کل نگاہیں نیچی کر کے کون چل رہا ہے؟ نگاہیں نیچی کر کے اگر چلیں گے تو ٹکر اور ہوگی. اچھا آپ ایمانداری کے ساتھ بتائیے, جلسہ ہو رہا ہے نا, عورتوں کی آواز آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ دیکھ رہے ہیں ہم تھوڑی دیر چپ ہو جائیں تو لیڈیز کی آواز یہاں آ رہی ہے. سسٹم صحیح نہیں ہے. ان عورتوں کا انتظام اتنی دور کرنا چاہیے کہ ان کی آواز مردوں تک نہیں آئے. اپنے مردوں تک کی تو سن نہیں رہی ہیں, آج مولویوں کی سنیں گی. نکال دو یہ ذہن سے. ایک مولانا صاحب نے خطبہ کیا تقریر میں, جمعے میں, جمعے کا نماز پڑھ کے بیچارہ آدمی اپنے گھر گیا اور اپنی بیوی کو گود میں اٹھا کے ڈانس کرنے لگا, گود میں اٹھا کے. تو بیوی نے پوچھا واہ آج تو کمال کر دیا, جمعہ پڑھ کے گھر میں آئے, گود میں اٹھا لیا, آج بڑا رومانس کر رہے ہو, بڑا پیار کر رہے ہو. کیا مولانا صاحب نے محبت پہ خطبہ دیا کیا؟ رومانس پہ خطبہ دیا کیا؟ تو آدمی نے کہا نہیں, محبت اور رومانس پہ خطبہ نہیں دیا. مولانا صاحب نے آج خطبے میں بتایا ہے جو سب سے بڑی مصیبت کو خوشی خوشی اٹھائے گا وہ سیدھے جنت میں جائے گا. تو ہم تو مصیبت کو اٹھا رہے تاکہ جنت میں چلے جائیں. آدمی نے یہ جواب دیا. عورتیں چپ نہیں ہو سکتی ہیں. جلسہ جب بھی کرائیے تو عورتوں کا انتظام بہت دور کریے. یہ نہیں سنتی ہیں جلسہ. ایک آم کے پیڑ کے نیچے دو عورتیں بہت دیر سے باتیں کر رہی تھی. ایک آم ٹوٹا اور گرا ان کے پاس. جھونک گئی, ہے یہ آم کیسے ٹوٹ کے گر گیا؟ ایک عورت نے دوسری سے پوچھا یہ آم گرا کیسے؟ دوسری کچھ بتانے ہی والی تھی کہ آم خود بول دیا. آم بولا تم دونوں کی باتیں سن سن کے ہم پک گئے اس لیے گر گئے. اتنی دیر سے تم لوگ بول رہی ہو پک پک دھک دھک کر گئے کہ ہم خود پک گئے اس لیے گر گئے. دو عورتیں چپ نہیں رہ سکتی ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ جلسے میں 1000 2000 عورتیں آئیں گی, 5000 عورتیں آئیں گی, تو آپ اتنا پاس. آج تو ان کو موقع ملا اپنی سینڈل دکھانے کا, آج تو موقع ملا اپنی ساڑی دکھانے کا, آج تو موقع ملا ان کو اپنا سوٹ دکھانے کا.
इतना अच्छा मौका मौलाना जर्जीस की तकरीर में वो गवाएंगी, इतना अच्छा मौका। आज तो बता रही होंगी अपने फला दुकान से लिया है, उस दुकान का एड्रेस दे रही होंगी, तुम भी वहां से ले आना, बहुत सस्ता सामान मिलता है। आज तो उनकी ईद का दिन है। और इस जलसे में एक फायदा यह भी है कि कितने ही लड़कों ने लड़कियां पसंद कर ली होंगी कि हमें इसके घर रिश्ता भेजना है, और कितनी लड़कियों ने लड़का भी पसंद कर लिया होगा कि पसंद है, इसका आएगा तो हम। एक फायदा यह भी है, अब वो नुकसान के जरिए फायदा हुआ हो या जैसे भी हुआ हो, मेरे भाइयों ये नौटंकियां हो रही हैं इस्लाम के नाम। वरना अल्लाह के नबी के जमाने में अगर ईद का खुतबा अल्लाह के नबी मर्दों को देते थे तो औरतों के मजमे में पर्दे की ओर से आप उनको भी खुतबा देते थे, और पर्दे के पीछे से खुतबा देते हुए कहते थे, या माशरन निसाई तसद्दक़ना फ़इन्नी उरीदुकुन्ना अक्सरा अहलिन नार, ऐ औरतों ज्यादा से ज्यादा सदका और खैरात करो, इसलिए कि हमने तुम्हें जहन्नम में सबसे ज्यादा जलते हुए देखा है। औरतें जहन्नम में सबसे ज्यादा जलते हुए देखी गई हैं। पूछा साहबियात ने, अल्लाह के नबी आगे की तकरीर हम नहीं सुनेंगे आपकी, बस करिए, हमें सिर्फ इतना बता दीजिए कि औरतें सबसे ज्यादा जहन्नम में क्यों गई, क्यों जाएंगी, ताकि हम वो अमल अगर हमारी जिंदगी में हो तो हम छोड़ दें। फरमाया तकसुरनल लान व तुकसिरनल लान व तकफुरनल आशीर, तुम लानो तान ज्यादा करती हो, तुकसिरनल लान, तुम लानो तान ज्यादा करती हो, एक दूसरे की बुराइयां करती हो, एक दूसरे पर लानत भेजती हो, और अपने शौहर अपने हस्बैंड की नाफरमानी करती हो। याद रखना मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अय्युम इम्रातिन मातत व ज़ौजुहा अनहा राज़िन, जो औरत मर गई, जिस औरत का इंतकाल हुआ और इंतकाल के वक्त उसका पति उससे खुश था, उससे राजी था, तो वो औरत जन्नत के अंदर दाखिल होगी। मेरी माँ बहनें पहली बात तो सुन नहीं रही हैं, और जो सुन रही है वो सुन ले, अल्लाह के नबी ने जन्नती औरत की पहचान बताई। अय्युम इम्रातिन मातत, जो औरत मर जाए, इंतकाल कर जाए, लेकिन इंतकाल करते वक्त उसका पति, उसका हस्बैंड उससे राजी था, उससे खुश था, फदखलतिल जन्ना, तो ये औरत जन्नत के अंदर जाएगी। लेकिन इसके उल्टे भी फरमाया कि जो औरत मर गई इस हाल में कि उसका पति उससे राजी नहीं था, उससे खुश नहीं था, तो वो कितनी बड़ी नमाजी हो, चाहे तहज्जुद की नमाजी क्यों ना पढ़ती हो, वो जन्नत के अंदर दाखिल नहीं हो सकती। चाहे कितनी रोजेदार हो, वो जन्नत के अंदर नहीं जा सकती है। मेरे प्यारे साथियों, हमें अपनी बेटियों को ये तालीम देना चाहिए ताकि वो जब घर से जाएं, ससुराल में जाएं, तो वो अपने पति को इज्जत की नजर से देखें और उनको खुश रखने की कोशिश करें। मेरे भाइयों, हमने ये तालीम नहीं दी है, अपनी बेटियों के हाथ में मोबाइल दे दिया है, हमारी बेटियां मोबाइलों में ड्रामे देख रही हैं, और जैसे बताया जा रहा है उस तरीके से आज वो अपने पतियों के साथ अपनी जिंदगी गुजार रही हैं। हमने मजाक समझ रखा है इस्लाम को। सुनिए और गौर से सुनिए, हम अपनी बीवी के साथ खाना खा रहे हैं, सुन लो, आज मसलों पे आ गए हैं और मेरा दिमाग अब इधर फिर गया है, तो अब सुनिए आप। हम अपनी बीवी के साथ, एक मिसाल है, आप भी सुनिए, हम अपनी बीवी के साथ खाना खा रहे हैं, और खाना खाते ही के दौरान हमारी बीवी की बहन, साली, बीवी की बहन घर में आ जाती है, और मेरी बीवी अपनी बहन को कह रही है, आओ आओ तुम भी खाना खा लो, आओ आओ कोई बात नहीं आओ, और साली भी बैठ गई। सुनो, कलेजा है तो सुनो, दिल और गुर्दे हैं तो सुनो। इस्लाम पानी और रंग की तरह, अगर हम इस्लाम को अपने अंदर बसाना चाहते हैं तो सुनो, बीवी की मौजूदगी में भी, बीवी की मौजूदगी में भी, बीवी के सामने भी हम अपनी साली के साथ बैठकर खाना नहीं खा सकते हैं। मेरी साली भी मेरे साथ बैठकर, मेरी बीवी की मौजूदगी में भी मेरे साथ खाना नहीं खा सकती है। इस्लाम हमारी बीवी की बहन को, हमारी साली को भी बीवी की मौजूदगी में भी बहनोई के साथ खाना खाने की इजाजत नहीं देता है। अपनी सालियों को स्कूल पहुंचाने वालों, अपने गांव से किशनगंज और
सिलीगुड़ी तक ले जाने वालों, अपनी बाइक पर बिठा के घुमाने वालों, कान के पर्दे खोल कर सुन लो। तुम्हारी साली का बाप यानी तुम्हारा ससुर भी अगर तुम्हें इजाजत दे रहा हो और बीवी भी कह रही हो जाओ मेरी बहन को स्कूल छोड़ाओ, जाओ मेरी बहन को हॉस्पिटल लेकर उसको डॉक्टर के पास उसका इलाज कराओ, सिलीगुड़ी ले जाओ, बीवी की परमिशन के बावजूद, बाप की ससुर की इजाजत के बावजूद बहनोई के लिए जायज नहीं है कि वो अपनी साली को अकेले तन्हे तना अपनी बाइक या 4 व्हीलर पर सिलीगुड़ी ले जाए, किशनगंज ले जाए। ये हराम है उसके लिए। कलेजा थाम के बैठो और देखो हमारे मुआशरे के अंदर ये बुराई पाई जा रही कि नहीं पाई जा रही है, पाई जा रही कि नहीं पाई जा रही है। जब बीवी की इजाजत और ससुर की इजाजत के बाद भी जायज नहीं है तो बिना इजाजत घुमाना ये कैसे जायज हो जाएगा? बहुत आसान है कह लेना कि साली आधी घर वाली है, तेरे बाप का फतवा होगा ये, तेरे बाप का सिस्टम होगा ये। तेरी बहन भी किसी की साली होगी, वो भी उसकी आधी घर वाली होगी। उसको इस नजरिए से देखने की कोशिश करो। इस्लाम के अंदर साली को भी बहनोई से पर्दा करना पड़ेगा, इसलिए कि बीवी के इंतकाल के बाद या बीवी की तलाक के बाद साली के साथ निकाह जायज हो जाता है, और जिसके साथ निकाह जायज हो उससे पर्दा जरूरी। जहां यह मसला साली के साथ है वहीं यह मसला भाभी के ऊपर भी लागू होता है। सुन लो, हमारी भाभी अपने शौहर के साथ खाना खा रही है या जरजीत साहब खाना खा रहे हैं और जरजीत साहब के भाई की बीवी यानी भाभी हमारे रूम में आ जाती है और हमारा भाई भी वहीं बैठकर मेरे साथ खाना खा रहा है, और भाई ने कह दिया अपनी बीवी से आओ आओ तुम भी खाना खा लो, कोई बात नहीं देवर है तुम्हारे, बैठो। भाई की परमिशन के बावजूद, शौहर की इजाजत के बावजूद भाभी के लिए देवर के साथ खाना खाना जायज नहीं है। भाई की परमिशन के बावजूद भाभी को अकेले बाइक पे बिठा के किशनगंज और दार्जिलिंग ले जाना, सिलीगुड़ी ले जाना जायज नहीं है। दलील ये अराइतल हमवा या रसूल अल्लाह, एक औरत ने सवाल किया अरे अल्लाह के नबी क्या मैं देवर से भी पर्दा करूं? देवर हमारे घर में रहता है, ज्वाइंट फैमिली है, आना जाना लगा रहता है, क्या मैं देवर से भी पर्दा करूं? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया हाँ, मोहल्ले के दूसरे लोगों से कभी कभी बेपर्दगी हो जाए चलेगा, मोहल्ले के दूसरे लोगों के सामने कभी चेहरा खुल जाए चलेगा, अलहमुल मौत, लेकिन देवर से हर हाल में पर्दा करना है क्योंकि देवर तो मौत है भाभी के लिए। ये जबान हमारी नहीं है, हमारी जबान जरूर है लेकिन अल्फाज मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के हैं, हदीस जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, अलहमुल मौत, देवर भाभी के लिए मौत है। अब अंदाजा लगाओ जो मौत हो वो मौत कैसे भाभी को लेके जा सकता है अपने घर से बाहर? साहब मेरे भाई ने इजाजत दे दी, यहां भाई की इजाजत नहीं चलेगी, यहां शरीयत का हुक्म चलेगा, शरीयत का हुक्म। हम इन चीजों पर गौर करें, सोचें क्या इस्लाम के साथ हमारा ताल्लुक यह है? या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ईमानो वालो तुम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। बच्चों के साथ हमारा ताल्लुक क्या है? फरमाया जब तुम्हारे घर में बच्चा पैदा हो, जब तुम्हारे घर में बच्चा पैदा हो तो 7वें दिन उसका अकीका करो, उसके सर के बाल काटो, पूरा टकला, 7वें दिन उसके सर के सारे बाल छिलो और बालों के वजन के बराबर चांदी गरीबों और मिस्कीनों में तकसीम करो। मान लीजिए सारे बाल हमने काटे और 5 ग्राम हुए तो 5 ग्राम चांदी या 5 ग्राम चांदी की कीमत गरीबों में मिस्कीनों में दी जाएगी, और ये इस्लाम का एक हिस्सा है, इससे आप बच नहीं सकते हो। 7वें दिन उसका अच्छा नाम रखो, गुड्डू पप्पू नहीं, ट्विंकल नहीं, लड़कियों के नाम उल्टी स्वीटी नहीं, अच्छा नाम रखो, नाम का असर पड़ता है।
قیامت کے دن ناموں سے بلایا جائے گا. اچھا نام رکھو جس کا معنی اچھا ہو. جب 7واں دن ہو جائے تو اس کا عقیقہ کرو. اور مسئلہ یاد رکھنا, عقیقہ صرف 7ویں ہی دن ہے, 14ویں دن کی دلیل نہیں ہے, 21ویں دن کی دلیل صحیح نہیں ہے کہ 7ویں دن طاقت نہ ہو تو 14ویں دن کر لو, 14ویں دن نہ ہو تو 21ویں دن کر لو. نہیں, عقیقہ صرف 7ویں دن ہے. اور 7ویں دن کسی مجبوری کی وجہ سے اگر آپ نہیں کر سکے تو جب تمہیں موقع ملے, جب تمہارے پاس مجبوری ختم ہو جائے اس وقت کر لو. 7ویں دن نہیں کیا اور 8ویں دن مجبوری ختم ہو گئی تو 8ویں دن کر لو, 9ویں دن مجبوری ختم ہو گئی تو 9ویں دن کر لو. اب یہ نہیں کہ 7ویں دن نہیں کیا تب 14ویں دن کر لیں گے, نہیں, 14ویں دن کا انتظار نہیں کیا جائے گا. 14ویں دن بھی مجبوری رہی, 21ویں دن بھی رہی, تو جب تمہاری مجبوری ختم ہو جائے تب کر لو. اور جب تک اس بچے کا عقیقہ کر نہیں لیا جائے گا اس بچے کی دعا باپ کے حق میں قبول نہیں ہوگی. سمجھ رہے ہیں نا؟ رہن ہے, رہن, بچہ گروی ہے, چاہے کتنی وہ بچہ دعا کرے باپ کے حق میں پھر قبول نہیں ہوگی اگر عمدن قصدن جان بوجھ کر استطاعت کے باوجود آپ نے اس کا عقیقہ نہیں کیا تو. یہ باپ کے اوپر ایک قرض ہے جب تک وہ اس کو ادا نہیں کرے گا. ہاں بچہ 20 سال کا ہو گیا, اب مجبوری ختم ہوئی ہے تو اب کر دو. باپ 20 سال تک اپنے بچے کا عقیقہ نہیں کر سکا مجبوری کی وجہ سے اور انتقال ہو گیا, تو بچہ خود کمانے لگے تو وہ اپنا عقیقہ خود بھی کر سکتا ہے. لیکن کرنا ہے, اگر استطاعت ہو جائے تو کرو, کرنا ہے. یاد رکھیے 7ویں دن عقیقہ کرے گا. جب بچہ پیدا ہو تو 7ویں دن عقیقہ کرو. 7ویں دن اس کا اچھا نام رکھو, اس کے سر کے سارے بال چھیل کر بالوں کے وزن کے برابر چاندی یا اس چاندی کی قیمت غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کرو. لڑکا ہے تو 2 جانور اور لڑکی ہے تو 1. گائے نہیں چلے گی, بھینس نہیں چلے گی, اونٹ نہیں چلے گا, بڑے جانوروں میں عقیقہ نہیں ہوگا. عقیقے کے لیے بھیڑ بکری چاہیے, دبا, انہی جانوروں میں عقیقہ ہوگا. لڑکا ہے تو 2 اور لڑکی ہے تو 1. ہاں اگر آپ کے پاس مجبوری ہے اور لڑکا پیدا ہوا ہے لیکن 2 جانور کی قیمت نہیں ہے, 2 جانور کی استطاعت نہیں ہے, 1 جانور آپ کر سکتے ہیں. اگر استطاعت نہیں ہے تو 1 جانور بھی کیا جا سکتا ہے. اسلام میں آسانی ہے, سختی نہیں ہے. اگر 2 لڑکا ہے اور ہم غریب ہیں, 2 جانوروں کی قیمت نہیں ہے میرے پاس لیکن 1 کی استطاعت ہے تو یہاں اجازت ہے شریعت کی طرف سے, تو تم 1 ہی کر دو, کیونکہ اللہ رب العالمین کسی پر اس کی بوجھ سے زیادہ, اس کی حیثیت سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالتا ہے. لڑکی ہے تو 1 ہے ہی. میرے بھائیوں, پھر حکم ہوتا ہے جب تمہارا بچہ زبان چلانے لگے, کچھ تھوڑا تھوڑا بولنے لگے, تو سب سے پہلے اس کی زبان سے اللہ اللہ نکلواؤ. 6-7 مہینے کے بعد بچے تھوڑا تھوڑا بولنے لگتے ہیں, اس کی زبان سے اللہ 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 نکلواؤ. اور جب بچے کی زبان تھوڑی صحیح ہو جائے تو اس کو لا الہ الا اللہ سکھاؤ, اس کو لا الہ الا اللہ سکھاؤ. ہم کیا سکھا رہے ہیں؟ 4 سال کا ہو گیا, ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. کتنا گدھا ہے یہ باپ, اور میں گدھا کہہ دیا ہوں. جس کو برا لگتا رہے, جس کو مرچی لگ رہی لگتی رہے. اب بتائیے گدھے میں عقل نہیں ہوتی ہے؟ گدھے میں عقل ہوتی ہے کہیں؟ ہارن بجاؤ تو گدھا وہیں آئے گا جہاں گاڑی گھوم رہی ہے, ٹی اور آئے گا گاڑی کے پاس. اس میں عقل نہیں ہے. یہ بتاؤ آپ کا بچہ 5 سال کا ہو گیا, آپ اس کا برتھ ڈے بنا رہے, ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. تیرا بچہ اللہ کی طرف سے 80 سال کی عمر لے کے آیا تھا, 5 سال اس کی کم ہو گئی ہے, اب اس کی عمر 75 سال رہ گئی ہے اور تو خوش ہو رہا ہے. وہ اپنی زندگی کے 5 سال کم کر چکا اور تو خوش ہو رہا ہے. اگلے سال وہ 6 سال کا ہو گیا, پھر تو کیک کاٹ رہا. وہ 1 سال اپنی زندگی کا اور کم کر چکا, تو کیک کاٹ رہا, خوشیاں منا رہا ہے. اس سے بڑا بے وقوف اور اس سے بڑا گدھا باپ کون ہوگا جو اپنے بچے کے جنم دن پر کیک کاٹ رہا ہے, 1 سال اس کی زندگی کا کم ہو رہا ہے اور یہ خوشیاں منا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا گدھا کوئی باپ ہو ہی نہیں سکتا.
इतना बुरा लग रहा होगा जिन्होंने हैप्पी बर्थडे, अब है तो है, हम क्या करें। कुरान ने भी मिसालें दी हैं जानवरों की, उलाइका कलानाम बल हुम अज़ल, ये लोग चौपायों की तरह बल्कि उनसे भी ज्यादा गए गुजरे। कुरान ने मिसाल दी है, हम क्या करें। अब दुनिया जीफतुल मय्यत, ये दुनिया मरी हुई लाश है। वह तालिबुहा किलाब, और इस दुनिया के पीछे घूमने वाले, इस दुनिया की दौलत में मगन रहने वाले, इस दुनिया को तलब करने वाले और इस दुनिया को चाहने वाले कुत्ते हैं। तालिबुहा किलाब, अल्लाह के नबी कह रहे हैं इस दुनिया को चाहने वाले कुत्ते हैं, कुत्ते। अब हम क्या करें, अल्लाह के नबी कह रहे हैं, हम क्या करें। अकल जिसके अंदर नहीं होती है वो जानवर गधा है। अब गधे वाला काम हम कर रहे हैं। बहुत से गधे तो इतने बड़े पड़े हैं कि 85 साल की उम्र में भी अपना बर्थडे मना रहे हैं। 1-2 साल के और रह गए मरने वाले, फिर भी लंबी उम्र की कामना कर रहे हैं। इसलिए फरमाया कि जब तुम्हारा बच्चा जबान सही कर ले, बोलने लगे, तो ला इलाहा इल्लल्लाह सिखलाओ। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ रही है, अमल भी ऐसे ऐसे बताओ कि वो जन्नत के करीब भी होता जाए, जहन्नम के करीब ना हो, जन्नत के करीब जाए। अब हुक्म होता है ला इलाहा इल्लल्लाह सिखाओ। अब हुक्म होता है जब तुम्हारा बेटा 7 साल का हो तो उसको वुजू करना सिखलाओ, नमाज पढ़ना सिखलाओ, अपने साथ उसको उंगली पकड़ के मस्जिद में ले जाओ, उसको नमाज की आदत डलवाओ। कभी पढ़ेगा कभी छोड़ेगा, कभी पढ़ेगा कभी छोड़ेगा, कोई बात नहीं, सख्ती बहुत ज्यादा नहीं करना है, लेकिन लेके जाना है, आदत डलवाना है। अब 3 साल तक ये आदत डलवाओ। जब उसकी उम्र 10 साल की हो जाए तो अब सख्ती करोगे। जब वो 10 साल का हो और नमाज न पढ़े तो पीट पीट कर, मार मार कर उसको मस्जिद में ले जाओ। 10 साल के बाद फिर नमाज माफ नहीं है। 10 साल का हो जाए तो उसको मस्जिद की तरफ ले जाओ, उसको मारो। 10 साल का बेटा नमाज न पढ़े तो बाप मारे, 40 साल का बाप नमाज न पढ़े तो कौन मारे। दादा तो मर गया बेचारा, वो तो इस दुनिया में न रहा। याद रखो, जो 40 साल की उम्र में बाप नमाज नहीं पढ़ रहा है तो उसका 10 साल का बेटा कैसे नमाज पढ़ेगा। ये औलाद के साथ हमारा इस्लाम के साथ कनेक्शन कैसा है। क्या पानी और रंग की तरह है या पानी और पत्थर की तरह है। जरा तसव्वुर करें, ये औलाद के बारे में हुक्म दिया, हम ऐसा कर रहे हैं। 10 साल के बाद एक सहाबिया थी, मुस्नद अहमद की हदीस है, एक सहाबिया थी, उनके घर में बच्चा पैदा हुआ। जब भी वो पेशाब करता था, माँ पानी का बर्तन लाती थी और उसकी शर्मगाह पे डाल देती थी। तरबियत देखिए, पेशाब किया, माँ ने बर्तन लिया और उसकी शर्मगाह पे डाल दिया पानी। जब वो बच्चा चलने के लायक हुआ, जब वो बच्चा चलने के लायक हुआ और उसका पहला दिन था अपने पैरों के बल खड़े होकर चलने का, मतलब चलने का, जब पहला दिन था बच्चा चला और बच्चे को पेशाब लगा तो बच्चे ने पानी का प्याला देखा, यानी कोई मिट्टी का बर्तन होता था उस जमाने में। बच्चे ने पानी का बर्तन देखा और उसको पेशाब लग रहा है। बच्चा बैठता है, पानी का बर्तन दोनों हाथ से उठाता है। उस बर्तन में थोड़ा पानी है लेकिन उस बच्चे को मालूम नहीं है, बस वो बच्चा पानी उठा रहा है। अब वो पेशाब कर रहा है। जब पेशाब करता है तो पानी लेकर वो अपनी शर्मगाह पे डाल रहा है। उसको अभी ये नहीं मालूम कि ये क्या है, इस्तिंजा है। उससे पहले हमें पानी के एक एक कतरे को निकालना पड़ेगा। उसके बाद दाहिने हाथ से पानी का बर्तन लेकर हम बाएं हाथ से अपनी शर्मगाह को पकड़कर उसको धोएंगे। उस बच्चे को ये कुछ नहीं मालूम, उसको सिर्फ इतना मालूम है कि जब भी मैं पेशाब करता था मेरी माँ पानी डाल देती थी। उस बच्चे ने पानी का प्याला लिया, पेशाब जमीन पर किया और पानी लेकर ऐसे ही डाल रहा है जैसे उसकी माँ डालती थी। माँ अपने बच्चे के इस मंजर को देख रही है, माँ की आंखों में खुशी के आंसू है। जब बच्चा पेशाब करके पानी डाल लेता है, कहती है फुस्तु बिरब्बिल काबा, अल्लाह की कसम में कामयाब हो गई, अल्लाह की कसम में कामयाब हो गई। मैं अपने बच्चे को जो तरबियत देना चाहती थी, जो सिखाना चाहती थी, वो मैं सिखा चुकी हूँ। अल्लाह की कसम में अपने बच्चे की तरबियत में कामयाब हो गई हूँ। 1 साल का मुश्किल से बच्चा, 1.5 साल का मुश्किल से बच्चा और पानी का प्याला लेकर पेशाब करने जा रहा है और माँ ने कहा मैंने जो तरबियत दी वो बच्चे को तरबियत आ गई है, अभी पेशाब कर रहा है, ठीक है, कल उसको अकल भी आएगी। ऐसी माएं ऐसी तरबियत देती। एक माँ ये थी जिसने अपने बच्चे को ये तरबियत दी। एक माँ वो थी जिसने
अपने बच्चे को डाकू बना दिया। सुल्तान डाकू का नाम सुना होगा आपने, बहुत बड़ा क्रिमिनल गुंडा, पकड़ा गया, मुकदमा चला और उसको फांसी की सजा सुना दी गई। जब फांसी के तख्ते पे ले जाया गया तो पूछा गया सुल्तान डाकू से, बताओ तुम्हारी आखिरी तमन्ना क्या है? उसने कहा कि मेरे सामने मेरी मां को लाकर खड़ा कर दिया जाए और मेरी फांसी मेरी मां की आंखों के सामने दी जाए। उसकी मां को लाया गया, मां रोते हुए आई। सुल्तान डाकू अपनी मां से कहता, मां क्यों रो रही हो, क्यों रो रही हो? ये तो होना ही था, आज मैं फांसी के फंदे पर, फांसी के तख्ते पर तुम्हारी वजह से लटक रहा हूं, तुम मुझे मार रही हो। पुलिस वालों ने उस वक्त हैरत से पूछा, तुम्हारी मां ने क्या किया? वो तो रो रही बेचारी। कहा नहीं पुलिस वालों, तुम्हें नहीं मालूम, जब मैं 5 या 6 साल का था मेरी मां ने मुझे पैसे दिए कि एक अंडा खरीद कर लाओ। मैं अंडा खरीदने गया, अंडा दे दिया अंडे वाले ने, और पैसे देना मैं भूल गया। उसने भी पैसे नहीं मांगे और मैं अंडा लेके चला आया। मैंने अपनी मां को अंडा दिया और कहा, मां हमने अंडे वाले को पैसे नहीं दिए। मां ने कहा, शाबाश बेटा, तुमने बहुत अच्छा किया, अब इन पैसों से शाम का भी खाना बन जाएगा। एक अंडे की चोरी के बाद फिर मेरे हौसले बढ़ गए, फिर मैं यहीं से चोर बनने लगा और चोरी में कामयाब होते होते मैं डकैत बन गया और डाकू इतना बड़ा बना कि जब लोगों से माल छीनने लगा और लोग माल देने में जब कतराने लगे तो उनकी जान लेने लगा। किसी की जान लेना मेरे लिए आसान हो गई और फिर मैं पकड़ा गया और उस जुर्म में मुझे आज फांसी की सजा सुनाई गई। अगर मेरी मां ने 6 साल की उम्र में जब मैंने पहले अंडे की चोरी की और उस दुकानदार को पैसा नहीं दिया, अगर मैंने अंडा अपनी मां को देते वक्त इसके बारे में बताया होता कि ये चोरी का अंडा है और उसी वक्त मां ने एक थप्पड़ मेरे गाल पे मारा होता या मेरी पीठ पर मारा होता और मेरी उंगली पकड़ कर लेकर ये पैसे उस दुकान वाले को दिए होते या अंडा वापस कर दिया होता, तो आज मैं इतना बड़ा चोर और इतना बड़ा डाकू नहीं बनता। इसकी जिम्मेदार मेरी मां है। जितने लोग आज जो लड़कियों से मोबाइलों में बातें कर रहे हैं, व्हाट्सएप कर रहे हैं, यकीनन ये उनके माँ बाप की तरबियत की कमी है। अगर उनके बाप ने और उनकी मां ने अगर तरबियत दी होती तो जिन लड़कियों से वो बात कर रहे हैं वो उनको अपनी बहन और अपनी बेटी समझ रहे होते, अपनी बहन समझ रहे होते, आज उनसे अश्लील बातें नहीं कर रहे होते, आज व्हाट्सएप पे गुफ्तगू नहीं कर रहे होते, आज मोबाइल पर गुफ्तगू नहीं कर रहे होते, आज 1-1 और 2-2 घंटे उनसे बातें नहीं कर रहे होते। ये तरबियत की कमी है, चाहे बाप की हो या मां की हो। एक तरबियत वो थी कि हजरत मरियम अलैहिस्सलाम मस्जिद के मेहराब में बैठी हुई हैं और उनके पास बेमौसम फल आ गए। मौसमी का मौसम नहीं मौसमी आई, गाजर का मौसम नहीं गाजर आई है, मेरे भाइयों तरबूज का मौसम नहीं तरबूज रखा हुआ है, आम का मौसम नहीं लेकिन आम रखा हुआ है। हजरत जकरिया जब मस्जिद के मेहराब में दाखिल हुए, जब देखा कि मरियम के पास ये फल आ गए हैं, इसका तो मौसम ही नहीं है, सीजन ही नहीं है इन फल का, फिर ये फल कहां से आए? तो हजरत जकरिया ने सबसे पहला सवाल ये किया मरियम से, अन्ना लक हाजा, आए मरियम पहला ये बता कि ये फल कहां से आए? सेब का मौसम नहीं सेब कहां से आया, अनार का मौसम नहीं अनार कहां से आया, आम का मौसम नहीं आम कहां से आया? पढ़िए सूरह मरियम, कुरान कहता है अन्ना लक हाजा, ये तेरे पास कहां से आया? इसका जवाब दे। अल्लाह वाली थी, नेक थी, अरे जिसने बगैर शौहर के बेटा पैदा किया ईसा को और अल्लाह ने उसकी पाक दामनी का ऐलान किया, अल्लाह ने उसकी पाक दामनी का सबूत दिया, वो बदचलन कैसे हो सकती थी? लेकिन जकरिया क्लास ले रहे, बताओ ये फल कहां से आया? और मरियम कहती है शक मत कीजिए, डाउट मत कीजिए, मेरे बारे में कोई गलत ख्याल पैदा मत कीजिए। क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह, ये सारी नेमतें मुझे अल्लाह की तरफ से मिल रही हैं। ऐ ज़करिया, मुझे पालने पोसने वाले, मेरी परवरिश करने वाले, मुझे अच्छी तरबियत देने वाले, मेरी रगों में आप ही का खून है, इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये कोई लड़के ने ला के नहीं दिया, मेरा किसी लड़के से कोई ताल्लुक नहीं है, कनेक्शन नहीं है, ये नेमतें मुझे अल्लाह के पास से मिल रही हैं। आप बाप हैं, आप अपनी बेटियों से पूछिए ये मोबाइल तेरे पास कहां से आया? ये तो 12
13 15,000 का मोबाइल है, हमने तो तुम्हें लेके नहीं दिया, ये तुम्हारे पास कहां से आया? 500-600 रुपए का रिचार्ज तुम्हारे मोबाइल में, 1.5-2 GB तुम्हें रोज मिल रही है, ये पैसा तुम्हारे पास कहां से आया है? हम तो तुम्हें मोबाइल में 2 ही नंबर थे तुम्हारे पास, एक माँ का, एक बाप का या एक भाई का, अभी अभी ये तीसरा नंबर, इस नंबर से जो कॉल आई है ये कहां से आई है? ये सारे सवाल आज बाप ने अपनी बेटी से पूछना छोड़ दिया, इसलिए बेटियां भी आवारा गायों की तरह हो चुकी हैं, आवारा जानवरों की तरह हो चुकी हैं। आज हमने तरबियत देना छोड़ दिया है। सुनिए, जब तरबियत नहीं होगी तो यही हाल होगा। आज हमने अपनी बेटियों को, अपनी औलाद को तरबियत नहीं दी है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, जो बड़े पीर साहब के नाम से मशहूर हो गए, वो अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह 12 साल की उम्र में काफिले के साथ जा रहे थे। उनकी माँ ने 12 साल की उम्र में उनके कुर्ते के अस्तर में 40 अशरफी सिल दी थी और सिलते वक्त छुपा दिया था और कहा था, बेटा देखो ये 40 अशरफियां हैं, लेकिन हालात चाहे कितने खराब हो जाए, बेटे तुम झूठ कभी मत बोलना, तुम झूठ कभी मत बोलना। माँ अपने 12 साल के बच्चे को काफिले के हवाले कर रही है, लेकिन नसीहत ये कर रही है, बेटे हालात कितने भी खराब हो तुम झूठ कभी मत बोलना। माँ जानती है हालात खराब हो सकते हैं, लेकिन झूठ बोलकर हालात और खराब कर लिए जाएंगे। अगर अपने आप को बचाना है तो सच बोलकर ही बचाया जा सकता है। मेरे प्यारे साथियों, जब डाकुओं ने उस काफिले पर हमला किया तो सारा काफिला लूट लिया। डाकुओं का एक आदमी जब अब्दुल कादिर के पास आया, कहने लगा, ए लड़के तेरे पास भी कुछ है? उसने कहा हाँ। बोल क्या है? 40 अशरफी हैं? 40 कहाँ हैं? कहीं तो दिखने नहीं। कहा ये है, अस्तर सिल उधेड़ा 40 अशरफी मिली। कहा बेटे ये तो छुपी हुई थी, तुम अगर मना कर देते तो मैं यहां तक पहुंच ही नहीं पाता, तुमने पता कैसे दी? कहा कि चलते वक्त मेरी माँ ने मुझे नसीहत की थी कि हालात चाहे कितने खराब हो झूठ कभी मत बोलना। इतनी सी बात का उस डाकू पर यह असर हुआ, चीख पड़ा, आए डाकुओ इधर आओ। इस बच्चे ने अपनी माँ की इतनी बात मानी है कि इस हाल में भी वो झूठ नहीं बोला और 40 अशरफियां मुझे दे दी। मेरी तो पूरी जिंदगी चोरी में गुजर गई है, लुटेरीपन में गुजर गई है, डकैती में गुजर गई है। ये बच्चा अपनी माँ की नाफरमानी नहीं कर सका, हम अपने रब की नाफरमानी कर रहे हैं। हम अपने रब को क्या मुंह दिखाएंगे? हम अपने रब को क्या जवाब देंगे? सारे काफिले का लूटा हुआ माल वापस कर दिया और उन डाकुओं ने सबने सच्ची तौबा कर ली। ये बच्चा 12 साल का आगे चलकर शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नाम से मशहूर हुआ है और बड़े पीर साहब के नाम से जाना जा रहा है। हम अंदाजा लगा रहे मेरे भाइयों, माएँ क्या तरबियत दिया करती थी अपनी औलाद को, और आज हमारी माएँ हमें क्या तरबियत दे रही हैं। आज हमारा 4 साल का बच्चा पैंट की चैन खोलता है, माँ खोलती है, कहती है बेटा यहाँ खड़े होके पेशाब कर ले। माँ के सामने वो खड़े होके पेशाब कर रहा है। और एक वो माँ थी, जब बच्चा पेशाब कर रहा है तो उसके पानी का बर्तन उसकी शर्मगाह पे डाल रही है। तरबियत है। हमें इस्लाम हमारे अंदर कितना दाखिल है, हमने अपनी औलाद को क्या तरबियत दी है, जरा सोचो और अंदाजा लगाओ। फरमाया मेरे भाइयों, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, ईमानो वालो तुम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। तो ये इस्लाम के बारे में चंद नसीहतें मैंने आपके सामने रखी, इस्लाम के ताल्लुक से चंद नसीहतें, और इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह इस्लाम का पूरा इस्लाम हम अपने अंदर दाखिल करेंगे। पानी और रंग की तरह, पानी और पत्थर की तरह नहीं कि जब चाहो पत्थर को निकाल के फेंक दो। क्या मैं भीख मांगता था, उसने कहा फिर क्या करूं? आपने कहा घर में कुछ है? कहा एक चादर है, एक गिलास है, ला इन दोनों चीजों को। आपने बेच दिया है, बेच दिया, बजाय इसका अनाज लिया घर में डाल दे, और इसका की कुल्हाड़ी लिया, वो कुल्हाड़ी ले आया। नबी ने अपने हाथ को बैग डाल दिया लकड़ी और कहा जंगल में जाओ और लकड़ियां काट काट के बाजार में बेचो, और 15 दिन के बाद अपना हाल मुझे बताना। 15 दिन के बाद आया, कल आया, बहुत अच्छी गुजर रही है। आपने फरमाया ये मेहनत की कमाई तेरे ठीक मांगने से बेहतर थी। ये छोटे छोटे बच्चे जब इस्लाम पढ़ने के लिए आपको सुनाते हैं, आज हमें सुनाना पड़ रहा है। अल्लाह के रसूल ने कभी किसी से भीख नहीं मंगवाई, बल्कि चाहा कि वो मेहनत करे, मजदूरी करे। ये भी भिखारी है, अल्लाह अल्लाह, बल्कि ये तो इंटरनेशनल भिखारी है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ये तो कौम के ऊपर बोझ, कौम के ऊपर बोझ।
तो षडेश्वर है। और एक मंत्र और सुन लीजिए हमारे हिंदू भाइयों, मैं समझता हूँ जिस तरह नाम विष्णु यश यानी अब्दुल्ला, सुमति, आमिना, जिस तरह ये बिल्कुल ऐसा है कि इस पर किसी तफसीर की जरूरत नहीं है, उसी तरीके से ये मंत्र जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ बिल्कुल ऐसा है जिस पर किसी तफसीर की जरूरत नहीं। वाच भूप्रति प्रेम रामाया मद विशारदा अवदेव महाराज ममदा सत्तुमागिता मर्मोच्छिष्ट समंजिहाति तथा तदपश्य भौन्य इति श्रुत्वा तथा दृष्टा परम विस्मयमागिता चतुर्विराट त्रिविदेव कृष्यामि क्लिच्यम् भवन्तो बान्धवा देवा स्वाशनावतृष्यथा शरं श्रुधारी सदूषका उच्चालापि लिंगच्छेदी सर्वक्षो मतो मम्मा मुसलेनेओ संस्कारा। भविष्य पुराण प्रतिसर्ग परोखंड 3 अध्याय 3 मंत्र नंबर 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32। मेरे कितने हुए आपको पता है? 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 8 मंत्र पढ़ा ले अभी। अंतिम महर्षि चांद के 2 टुकड़े करेगा, उसको देखकर भारत का राजा अयोध्या जाएगा। इसका मतलब अयोध्या भारत में नहीं होगा, भारत का राजा चांद के 2 टुकड़े भारत में देखेगा तो भारत से अयोध्या जाएगा। मतलब ये हुआ कि भारत में अयोध्या नहीं होगा, भारत से अयोध्या जाएगा। आ मानी नहीं, युद्ध मानी जंग, ऐसी जगह जहां जंग लड़ना हराम अयोध्या, ऐसी जगह जहां जंग न हो। ये जो है ना ये फैजाबाद में है, ये अयोध्या, अयोध्या नहीं अयोध्या, और वो अयोध्या वेदों में जो कहा गया वो अयोध्या नहीं युद्ध जंग। अयोध्या ऐसी जगह जहाँ जंग न हो, यानी दारुस्सलाम, सलामती की जगह जहाँ जंग होगा। राजा भोज भारत से मक्का जाएगा, अयोध्या जाएगा, और जाने के बाद उसने मोहम्मद साहब से चंद बातें पूछी। जब सारी जनता जानवरों की तरह हो जाएगी, आचरण रहन सहन जब जानवरों की तरह हो जाएगा, धर्मत्राय सत्वैन भगवान अवतरष्यति। भगवान कोई मीडिया वाले हो तो नोट करें, कोई हिंदू भाई हो पढ़े लिखे हो तो वो भी नोट करें। भगवान अलग है, अवतरष्यति अवतार का अलग है, यानी भगवान अलग है, अवतार अलग है। भगवान ही अवतार नहीं है। प्राय जरेशु खरगर्मिणी धर्मत्राणाय सत्वैन भगवान अवतरष्यति। जब सारी जनता कलयुग में जानवरों की तरह हो जाएगी, तब धर्म की रक्षा करने के लिए धर्मत्राणाय, धर्म को बाकी रखने के लिए, धर्म को जिंदा रखने के लिए, सत्वैन और सच्चाई को नाफिज करने के लिए भगवान अवतरष्यति, भगवान अवतार भेजेगा। भगवान स्वयं आएगा नहीं कहा, भगवान अवतार भेजेगा। भगवान अवतरष्यति, भगवान अवतार भेजेगा। अंतिम ऋषि उस वक्त आएंगे कलयुग में। तो ईमानदारी के साथ बताइए, जो जमाना बताया जा रहा है सारी जनता जानवरों की तरह हो जाएगी, तब आखिरी नबी आएंगे। क्या मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दौर में आए, क्या वो जमाना बिल्कुल वही नहीं थी? जानवर किसको कहते हैं? जानवरों की तरह रहन सहन। पढ़िए ज़ातुल माद अल्लामा इब्न क़य्यिम की, और पूरा नबी अकरम की नबूवत से पहले का पूरा एक जमाना पड़ जाइए। जुआ खेलते थे तो इतना, जुए में रकम हार गए तो मकान लगा दिया, मकान भी जुए में हार गए तो बीवी लगा दी, और बीवी भी जुए में हार गए तो अपनी 18-20 साल की जवान बेटी भी जुए में लगा दी। शराब इतनी पिया करते थे कि दस्तरखान पर खाना जब सजता था तो उनके मिट्टी के बर्तनों में पानी पीने के लिए नहीं, बल्कि शराब के मग्गे हुआ करते थे। खाना खाते खाते लुक़मा जब अटक जाता था तो बजाय पानी के वो शराब का घूंट पीकर उस लुक़मे को उतारते थे। बेहयाई का दौर इतना था, एक लड़का अपनी बाप के मरने के बाद देखता था कि ये मेरी सौतेली माँ है, और बाप ने इससे शादी कर रखी थी। बाप मर गया, माँ पे नजर पड़ती थी कि ये बड़ी खूबसूरत है, कोई दूसरा मेरी माँ को अपनी बीवी न बना ले। वो
اپنے گھر میں رکھی ہوئی اپنی چادر کو اٹھاتا تھا اور اس چادر کو وہ لڑکا لا کر اپنی ماں کے اوپر ڈال دیا کرتا تھا اور چادر کو اپنی ماں پر ڈال کر اس چادر کو باہر نکال دیتا تھا. اس کا ہاتھ پکڑ کر یہ اعلان کرتا تھا کہ میں نے یہ چادر اپنی ماں کے اوپر ڈال دی. یہ اعلان اس بات کا غماز ہوا کرتا تھا, اس بات کا اشارہ ہوا کرتا تھا کہ اس لڑکے نے اپنی ماں کو اپنی بیوی بنا لیا. اب کوئی بھی اس کی ماں کے ساتھ پیغام نہ دے. شادیوں کے طریقے اتنے مختلف تھے. بخاری شریف کتاب النکاح, زمانے جاہلیت کے نکاح پر ایک نظر ڈالیے. ایک لڑکا کسی لڑکی کو نکاح کا پیغام دیتا, نکاح کر کے لاتا, لیکن اس کے ساتھ خود سہاگ رات نہ مناتا بلکہ اپنی اس بیوی کو کسی دوسرے نوجوان کو دے دیتا. وہ اس کے ساتھ زنا کرتا اور وہ نوجوان اس کو اس وقت تک اپنے پاس رکھتا جب تک کہ وہ حاملہ نہ ہو جاتی. جب حمل ٹھہر جاتا تو شوہر اپنی بیوی کو اس لڑکے سے لے آتا اور ایسا اس لیے کرتا تھا, ایسا کرنے سے ان کا عقیدہ یہ تھا کہ بچہ نیک پیدا ہوگا, بچہ بڑا شریف ہوگا. یہ شادی کا پہلا طریقہ تھا. شادی کا ایک دوسرا بھیانک اور گندا طریقہ یہ تھا 3 4 5 6 7 8 9 10 تک, 3 سے زیادہ اور 10 تک لوگوں کی ایک جماعت ایک لڑکی کے ساتھ جا کر زنا کرتی. پورے سال اس کے ساتھ زنا کرتی. 3 سے لے کر 10 تک, کبھی 3 کبھی 4 کبھی 1 کبھی 2, یعنی 3 سے زیادہ اور 10 سے کم. 10 تک لوگ ایک ہی لڑکی کے ساتھ پورے سال ملتے. جب وہ بچہ پیدا کرتی تو ان 10 کو بلاتی یا جتنے لوگوں کے ساتھ اس کے تعلقات قائم ہوئے ان سب کو بلاتی اور بلانے کے بعد وہ بچہ اٹھاتی اور ان لوگوں میں سے جس کی گود میں رکھ دیتی وہی اس کا باپ مان لیا جاتا, یہ اسی کی بیوی مان لی جاتی, اور وہ آدمی جس کی گود میں بچہ رکھا اس عورت کا وہ شوہر مان لیا جاتا تھا. نکاح کی ایک تیسری شکل یہ تھی کہ کچھ عورتیں اپنے گھروں میں ہری جھنڈیاں لگائے رہتی تھیں. یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ جو ان کے پاس آنا چاہے آ جائے. پورے سال ان کے پاس مردوں کی ایک ٹیم جاتی رہتی تھی, وہ کسی بھی آنے والے کو منع نہیں کرتی تھی. لیکن جب بچہ پیدا ہوتا تو ان سارے لوگوں کو بلاتی جتنے لوگ اس کے ساتھ زنا کیے, اور مجال نہ تھی کہ کوئی نہ آتا. جتنے لوگ اس کے پاس گئے سب کو آنا پڑتا. پھر خانہ کعبہ سے قیافہ شناس کو بلایا جاتا, وہ بچہ قیافہ شناس کی گود میں دے دیتی. قیافہ شناس اس بچے کی شکل کو دیکھتا, ان لوگوں میں سے اس کی شکل کی سادگی سے سب سے زیادہ میچ کھا رہی ہے. اس بچے کی شکل اتنے لوگوں میں جس سے سب سے زیادہ میچ کھاتی وہ بچہ اس کی گود میں رکھ دیتا, اسی کا بیٹا مان لیا جاتا اور یہ اس کی بیوی مان لی جاتی, یہ اس کا شوہر مان لیا جاتا. یہ جانور اور کس کو کہتے ہیں؟ مچھلیاں سمندر میں اپنے ہی بچوں کو کھا جاتی ہے. بالکل یہی صورتحال تھی عرب کی سرزمین پر. یقتلون ابناءہم, جب ان کے گھروں میں بچے پیدا ہوتے تو اس ڈر سے یہ بڑے ہو کر میرے ساتھ کھائیں گے, وہ اپنے بچوں کا قتل کر دیا کرتے تھے. وہ جانتے تھے کہ یہ بڑا ہو کر میرے اوپر بوجھ بنے گا, وہ اپنے بچوں کو قتل کر دیا کرتے تھے. جب لڑکیاں ان کے گھروں میں پیدا ہوتی تھی تو ایک مدت تک 1.5 سال 3 سال زیادہ سے زیادہ 4 سال تک اس لڑکی کو اپنے گھر میں رکھتے, اور جب وہ ابو امی کہنے لگتی تو میلے کا بہانہ بنا کر اس بچی کو لے جا کر اور جنگل میں گڑھا کھودا جاتا اور اس بچی سے کہا جاتا اے بچی اس گڑھے میں جھانک کر دیکھو, اس میں تمہاری امی دکھیں گی. وہ بچی اپنی امی کو دیکھنے کے لیے جیسے ہی گڑھے میں جھانکنے کے لیے جاتی, پیچھے سے اس کا وہی سگا باپ اپنی بیٹی کو دھکا دیتا, وہ اس گڈھے میں گر جاتی, اوپر سے وہ مٹی ڈالنے لگتا. قرآن کریم نے اس بےہودہ رسم کو روکنے کے لیے اعلان کیا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, جب زندہ دفن کی ہوئی لڑکیوں سے قیامت
قیامت کے دن سوال کیا جائے گا، اے بچیوں تمہارا کیا جرم تھا، کس جرم میں تم قتل کی گئی، کس جرم میں تم ماری گئی، تمہارے باپ نے تمہیں کس جرم میں قتل کیا۔ اس کی تشریح میں تفسیر قرطبی میں تفسیر خازن میں لکھا ہوا، وہ بچی چیخ کر کہے گی الہ العالمین میرا کوئی جرم نہیں تھا، میرا سب سے بڑا جرم یہ تھا کہ تو نے اس گھر میں مجھے لڑکی بنا کر پیدا کیا تھا، میرا جرم یہ تھا کہ میں لڑکی بن کر اس کے گھر میں پیدا ہوئی۔ اے اللہ لڑکی ہونا میرا سب سے بڑا جرم تھا، اس کے علاوہ میرا کوئی اور جرم نہیں تھا۔ وہ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، بالکل جانوروں جیسا ماحول تھا، اور ایسے ہی جانوروں جیسے ماحول میں دھرم کی رکشا کرنے کے لیے اور سچائی کو اثر نو دوبارہ نافذ کرنے کے لیے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کا دین اثر نو زندہ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرا شمس کو بھیجا، محمد کو بھیجا، محمد کو بھیجا، احمد کو بھیجا، انما کو بھیجا، کلکی کو بھیجا۔ دھرم کی رکشا زمانہ اس زمانے کی طرف اشارہ کیا گیا۔ ہمارے بہت سے ہندو بھائی اگر یہاں موجود ہو تو غور کریں، کل یگ اس سے زیادہ بھی اب کوئی آئے گا، یہ ماڈرن دور ہے۔ اب اس دور کے اندر آپ یہ امید مت رکھیے کہ اب جانوروں کی طرح کوئی رہن سہن ہوگا، نہیں، یہ زمانہ تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، سیٹلائٹ کیمروں کا زمانہ ہے، 24 گھنٹے کے اندر اندر ایک سوئی بھی سمندر سے ڈھونڈ لی جاتی ہے۔ ایسے زمانے میں اب آپ یہ سوچیں کہ جانوروں والا زمانہ اب دوبارہ لوٹ کر آئے گا، نہیں، وہ وہی 1400 سال پہلے والا زمانہ تھا جو بالکل جانوروں کی طرح۔ جب لڑکا اپنی ماں کو اپنی بیوی بنا لیتا ہو تو تصور کرو اپنی بیوی سے نکاح کر کے لایا اور اس سے ہم بستری کے بجائے اپنے دوست کو اپنی بیوی دے دیتا ہو، اس سے زیادہ حیوانیت اور کون سی ہو سکتی ہے، اور اس سے زیادہ جانوریت اور کون سی ہو سکتی ہے کہ لڑکا پیدا ہو تو قتل کر دیا جائے، لڑکی پیدا ہو تو زندہ دفن کر دی جائے، اس سے زیادہ حیوانیت اور کون سی ہو سکتی ہے؟ مجھے بتاؤ، ایسا زمانہ، ایسا کلیگ 1400 سال پہلے تھا، اور اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ کو نبی بنا۔ آئیے ذرا دوسرا منتر دیکھتے ہیں، یہ منتر نمبر 16 تھا، اب منتر نمبر 17 پڑھ رہا ہوں، بقیہ پورا حوالہ وہی شریمد بھاگوت مہان پران اسکند 12 ادھیائے 2، لیکن منتر نمبر اب 17 پہ پڑھنے جا رہا ہوں، 16 پڑھ چکا۔ تتھستو شمبھل گرامی سوت سواجی اجات منگلاچاریہ بہلا پاپتا وبججت۔ تتھستو شمبھل گرامی سوت سواجی اجات منگلاچاریہ بہلا پاپتا وبججت۔ تتھستو، غور سے سنو، شمبھل گرا میں، شانتی والے گاؤں میں، سوت سواجی اجات ہے، لوگوں کو نمنترن دینے والا، لوگوں کو اپنی آواز سنانے والا، اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر دھرم کا پرچار کرنے والا آئے گا۔ منگلاچار بہولا پاپتا وبججتا، اس کے آنے کے بعد منگلاچار، نیکیوں کے کام ہونے لگیں گے، کیونکہ وہ نیکیوں کے کام کا گرو ہوگا۔ منگلاچار، منگل اور آچار جب ملائیں گے تو پڑھا جائے گا منگلاچار، یہ پروننسیشن ہوگا سنسکرت میں، منگل آچار، کیا مطلب؟ منگل آچار جب ملائیں گے تو یوں پڑھا جائے گا منگلاچار، وہ نیکیوں کے کام کا گرو ہوگا، یعنی نیکیوں کی طرف دعوت دینے والا ہوگا، نیکیوں کا حکم دینے والا ہوگا۔ بہولا پاپتا، بہولا باہوبلی سے بنا ہے، جب کوئی بہت بڑا کرمنل ہوتا نا تو کیا کہتے ہیں؟ باہوبلی ہے، یہ سیوان کا باہوبلی ہے، یہ چھپرا کا باہوبلی ہے، اور پورے دیش کا باہوبلی کون ہے؟ نام لینے کی ضرورت نہیں ورنہ کیس ہو جائے گا۔ بہولا پاپتا وبججتا، کچھ چیزیں تم بھی سمجھو یار، ساری چیزیں ہم ہی سمجھائیں گے کھل کر، اتنا ہی رہنے دو۔ راحت اندوری نے کہیں مشاعرہ پڑھا تو اس نے ایک شعر پڑھا کہ دیش کا پردھان منتری چور، انڈیا میں اس کا مقدمہ ہو گیا، لیکن وہ بھی بڑا چالاک تھا، مقدمہ جیت گیا۔ جب اس کو کٹگرے میں کھڑا کیا تو اس نے بھی بڑی صفائی سے کہا کہ ہاں میں نے کہا تو تھا دیش کا پردھان منتری چور، لیکن میں نے یہ تھوڑی کہا تھا کہ انڈیا کا پردھان منتری چور، میں نے تو کہا دیش کا پردھان منتری چور، تو چور تو کسی بھی دیش کا ہے، ہم نے انڈیا کا نام نہیں لیا۔ جج نے کہا دیٹ از رائٹ، پوائنٹڈ تک۔ تو کچھ چیزیں میرے لیے بھی چھوڑ کے رکھو۔ باہوبلی سیوان کا، چھپرا کا کون ہے آپ جانتے ہیں، دیش کا کون ہے وہ بھی آپ جانتے ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ باہوبلی سے بنا ہے بہولا، بہولا، بہولا پاپتا وبججتا، کیا مطلب ہوا؟ منگلاچار نیکیوں کا حکم دینے والا ہوگا،
बहुला पापिता विवज्जता, और बड़े बड़े पाप, बड़े बड़े गुनाहों को नाम लेकर मिटाएगा, बड़े बड़े गुनाहों का नाम लेकर मिटाने वाला होगा। कहाँ आएगा? अथस्तु शंभल गिरामे, शंभल गिराम के अंदर, शांति वाले गांव के अंदर वो जन्म लेगा। आखिरी नबी कहाँ आएगा? खुल के कह दूं, मक्के में जन्म लेगा। मौलाना साहब ये मक्का कहाँ से लाए हो? तुम्हारी किताब में है मक्का। मक्का, शंभल गिराम का मतलब क्या होता है? शंभल, शम वर्ब है, शम जीरन है मस्दर, और शंभल उसी से एडजेक्टिव है, सिफत। शम, शम मानी शांत करना, शम शांत करना, और शंभल शांत। गिराम गांव, शंभल गिराम शांति वाला गांव। ये शंभल नहीं जो मुरादाबाद के पास है, जहाँ से मुलायम सिंह चुनाव लड़े थे, ये वाला संभल नहीं, ये संभल है, ये शंभल है। शंभल, शम के माना शांत करना, शंभल एडजेक्टिव है, सिफत है, और शंभल शांति वाला। गिराम गांव, शांति वाला गांव, अमन वाला गांव। कुरान में अमन वाला गांव उसका भी नाम नहीं लिया गया, लेकिन कहा गया अमन वाला गांव। किसको? वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। अल बलद मानी शहर, अल अमीन मानी अमन वाला, अमन वाला शहर, अमन वाला गांव, शांति वाला शहर, शांति वाला गांव। शंभल गिराम संस्कृत है, अल बलदिल अमीन अरबी है। मैं यूं कह दो कि जिसको भागवत पुराण के स्कंद 12 अध्याय 2 के मंत्र नंबर 17 में जिसको शंभल गिराम कहा गया, कुरान करीम के सूरह 3 में उसी को अल बलदिल अमीन के। कौन कहता है हम तुम में जुदाई होगी? पुरानी तस्वीरें भी याद करते रहना। मैं इसलिए बताता जाता हूँ शेर, ताकि आप पुरानी बातों को भूल न जाए। कौन कहता है हम तुम में जुदाई होगी? ये हवाई तो किसी दुश्मन ने उड़ाई होगी। हिंदू भाइयों आओ, मैं तुम्हें तुम्हारा खोया हुआ शंभल गिराम तुम्हें देने आया हूँ। आओ, ये तैयब साहब की मेहनत है। इतना बड़ा इजलास इन्होंने पहली बार यहाँ किया है। मौलाना साहब इसी पे बोलना। मैंने कहा पहली बार कर रहे हो? हाँ। मैंने कहा तजर्बा नहीं है, फिर मुझे कैसे बुला लिया? पहले छोटे छोटे जलसे करा के देखते। नहीं साहब, यूट्यूब पे बहुत सुना लोगों ने चाहते हैं। अब सुनो, इतना बड़ा जलसा, अल्लाह ताला इनको हौसला दे। मेरे भाइयों, बड़े प्यार से मैं हिंदू भाइयों को सबक देना चाहता हूँ। आओ, तुम शंभल गिराम ढूंढ रहे हो, हम तुम्हें दे रहे हैं शंभल। कसम है तीनों ज़ैतून की, कसम है तूर सीना की, वहाज़ल बलदिल अमीन, और कसम है इस अमन वाले शहर की। हाजा इसमें इशारा है, अल बलद शहर, अल अमीन मक्का, अल अमीन अमन वाला। इशारा है मक्के की तरफ। तमाम मुफस्सिरीन का इख्तिलाफ नहीं, इत्तिफाक इस बात पर कि अल बलदिल अमीन, हाजा से जो इसमें इशारा किया गया वो मक्के की तरफ है। और कसम है इस अमन वाले शहर की, कसम इस शांति वाले शहर की, यानी कसम अल्लाह ने खाई मक्के की। अल बलदिल अमीन मक्के को कहा गया। और आपकी किताब क्या कहती है? अंतिम ऋषि, अंतिम कल्कि अवतार कहाँ आएगा? शंभल गिराम में। कहाँ आएगा? अल बलदिल अमीन में। इसी को हम नाम लेकर कह देते, कहाँ आएगा? मक्के में। सोत स्वाजी उजात निमंत्रण देगा, ऊंची जगह पर खड़े होकर लोगों को बुलाएगा। आपने धर्म का प्रचार करने के लिए एक ऊंची जगह बनाई जिसको मिंबर कहा जाता है। हर जुमे के दिन खुतबे में उसी मिंबर के ऊपर आप खड़े होकर लोगों को ऊंची जगह पर बैठकर धर्म का प्रचार करते थे। आगे कहा गया मंगलाचार, वो नेकियों का हुक्म देगा। आप उसी खुतबे से उसी मिंबर पर खड़े होकर लोगों को नेकियों की तरफ बुलाते थे। बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह, लोगो ला इलाहा इल्लल्लाह के दो, कामयाब हो जाओगे। लोगो एक अल्लाह की इबादत करने वाले बन जाओ, कामयाब हो जाओगे। मुआशरे की इस्लाह की तो उसी मिंबर पर, उसी ऊंची जगह पर खड़े होकर, नमाज की दावत दी तो उसी जगह पर खड़े होकर, रोजे की दावत दी तो उसी जगह पर खड़े होकर, यहाँ तक कि मेरे भाइयों जब वांज़िर अशीरतकल अक़रबीन का ऐलान हुआ, अपने कराबतदारों को डरा दो, खुलकर डराओ, तो आपको इस सफा पर जो पहाड़ी के ऊपर आप खड़े हुए वो भी ऊंची जगह पर, और आपने उस पहाड़ी पर भी खड़े होकर भी लोगों को एक अल्लाह की तरफ बुलाया। आगे वाले जुमले
लिए जरा वजाहत तलब है। वो बड़े बड़े गुनाहों को नाम ले लेकर मिटाएगा, इसमें कोई शक नहीं। अल्लाह के नबी ने बड़े बड़े गुनाहों को नाम ले लेकर मिटाया। पूछा एक सहाबी है, अय्युज़म बिअकबर इंदल्लाह, अल्लाह के नबी सबसे बड़ा गुनाह अल्लाह के नजदीक कौन सा है? नबी अकरम के ज़बान से निकलता है अंतदुअ लिल्लाहि निद्दन व हुवा खलक़क, अल्लाह को छोड़कर किसी ऐसी हस्ती को पुकारो, किसी ऐसी हस्ती को पुकारो हालांकि उसने तुम्हें पैदा किया, अल्लाह को छोड़कर किसी और को पुकारो, तो इससे बड़ा गुनाह कोई नहीं है। यानी अल्लाह को छोड़कर किसी और से मदद तलब करो, ये सबसे बड़ा गुनाह है। अच्छी औरतें बड़े अच्छे अंदाज से अपनी बेटियों की रुखसती के वक्त उनको बड़ी अच्छी नसीहत करती हैं, और कभी कभी उन औरतों की बात जो अपनी बेटियों को रुखसती के वक्त करती है दिल में बैठ जाती है। एक औरत अपनी बेटी की रुखसती कर रही है, बेटी की आंखों में आंसू है, सारों की तार रो रही है, अपने घर से जुदा हो रही है। वो उसकी ससुराल की औरतें उसका हाथ पकड़कर उसको लेके जा रही हैं। सगी माँ कहती है मेरी बेटी मेरी एक नसीहत सुनती जाओ और उसके बाद तुम अपनी ससुराल जाओ, क्योंकि अब तुम्हारा असल घर वो है। बेटी बैठ जाती है, फर्मा बरदार थी। नसीहत करने वाली माँ किस अंदाज से नसीहत करती है, मेरी बेटी तुमने कभी गौर किया है तुम्हारे नबी ने शौहर का दर्जा इतना बुलंद क्यों किया है? फरमाया अगर अल्लाह के बाद सजदा किसी और को जायज होता तो अल्लाह ताला औरत को हुक्म देता, या मैं नबी अकरम औरत को हुक्म देता कि वो अपने शौहर को सजदा करे। बेटी जानती हो इतना बड़ा दर्जा क्यों है शौहर का? उसने नफी में जवाब दिया नहीं अम्मी, सुनो मेरी बेटी, शौहर का काम भी वही होता है जो अल्लाह तबारक व तआला का होता है। शक्लें थोड़ी सी बदली हुई हैं। अल्लाह अपने बंदों को इस दुनिया में पैदा किया तो उसके रहने के लिए जमीन बनाई, आसमान बनाया, बारिश बरसाई, सब्जी पैदा की, जमीन से गल्ला उगाया। एक शौहर भी अपनी बीवी के लिए छत का इंतजाम करता है, खाने पीने का इंतजाम करता है, मेहनत मजदूरी करता है, लेबर का काम करता है, मिस्त्री गिरी करता है। अल्लाह चाहता है कि मेरा बंदा दुनिया में जब पैदा हो, सांस ले, तो उसके लिए पानी पहले से मौजूद हो, उसकी ग़िज़ा उसकी माँ की पिस्तान में पहले से मौजूद हो। शौहर भी यही चाहता है कि मैं निकाह करके जब अपनी बीवी को लाऊं तो उसके लिए रहने के लिए छत पहले से मौजूद हो, उसके लिए कमरा पहले से मौजूद हो, उसके खाने पीने का इंतजाम पहले से मौजूद हो। खुद हमारे अंदर इतनी ताकत हो कि जब वो बीमार हो जाए तो उसका इलाज कराया जा सके। जी अम्मी, मेरी बेटी इतना याद रखना, अब मैं तुम्हें वसीयत करके रुखसत कर रही हूँ। ये सारे इंतजाम अल्लाह अपने बंदों के लिए करता है, फिर वो ये चाहता है कि मेरा बंदा पूरी जिंदगी जब तक जिंदा रहे मेरे सामने ही सजदा करे, मेरी ही इबादत करे, मेरा ही हुक्म माने। सब कुछ करने के बाद भी उसने ये कह रखा है मेरे बंदो हजारों गुनाह कर लोगे मैं तुम्हें माफ कर लूंगा, कर दूंगा, लेकिन याद रखना मेरी तौहीद में, मेरी रुबूबियत उलूहियत में किसी और को शरीक मत करना, मेरी इबादत में किसी और को शरीक मत करना।